Zubbers, my name is Rahul, and in this video I'm going to be talking about my whole life update, what I've been doing, where I've been, and for the past 2 years what I've done with my life. For the past 2 years I've been Mumbai, completing my MBA, getting a job, and just living life like that in a different city where you do not know anybody, and you have to create that whole character arc, your own growth, and you have to take care of your own self. Your parents will not be there for you. I mean, financially sure, but otherwise they will not really be there as they have been ever since you were a little kid. So ये बहुत big change. It was a pretty big change in my life to go from home and moving out of this new city, being a 21-year-old who was really consistent in doing things that he really liked. I created a personality about myself, and I think that personality has helped me a lot in this journey. Be it from making friends to interacting with people to creating my image in front of the other people. There were 700 people in my batch, so creating that kind of an image in front of other people, what kind of person I am, really helped me explore more and recognize myself more, and the whole journey of who am I, उस journey में बहुत ज़्यादा help मिली है through this whole 2 years of MBA, being a student in a different city, living a life. I really thought I was the kind of person who was really consistent and will go through each and everything, being consistent in his habits that he found really good. But I really allowed life to take over, didn't I? As you can tell from my face, I have gone pretty, I've gained a lot of weight, and that has really, that was a really good part of shunning, or, lowering my own confidence in myself when I looked at myself in the mirror. But मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस मेंटल हेल्थ जर्नी से, लाइक व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई बिकम. आई रियली वांट टू गो बैक, बट मेरी एक वो है थ्योरी है कि यू शुड नेवर बी, आई ट्राई एंड अवॉइड टू बी nostalgic about things. I tried and look forward to the growth, to the next opportunities, to the next exciting life that I have, and I don't want to dwell upon what I was, what things were, and be nostalgic about those things. जैसे तुम लोग रील्स देखते होगे कि वो पहले लाइफ कितनी अच्छी थी, अब कैसी हो गई. I do not think about those things because it's pathetic, honestly. It's sad and it's good comfy feeling to think about those things. जैसे पहले थी, जैसे मम्मी खाना बनाती थी, तुम घर पे रहते थे, स्कूल से आते थे, and things like that. It's really comfortable, but at the same time, are we really gonna get that back? No, we will move forward, we will go and do new things, we will grow, we will shine, and we will have an exciting life that we do not know what holds for us. I'm a kind of person who looks forward to that. I do not look back like, oh यार ये खत्म हो गया, ये MBA मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा, और ये कितनी सारी मेमोरीज हमने बनाई हैं जिसमें कितना ज़्यादा मज़ा आया था. यस श्योर, मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाई, एंड इट वाज फन डूइंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम स्कूल टू अंडर ग्रेजुएशन टू नाउ कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन. फन, मज़ा आया, इट वाज फन while it lasted, and I'm glad it happened, but I'm not gonna be fucking sad about it that ये ख़त्म हो रहा है. ये बहुत ज़्यादा गंदी माइंडसेट लगते हैं मेरे को, ऑनेस्टली, जो लोग रोते रहते हैं अबाउट द थिंग्स दैट आर एंडिंग इन देयर लाइव्स व्हाइल न्यू थिंग्स आर प्लान्ड. अगर तुम्हारे पास कुछ नया चीज़ प्लान नहीं होता, आई वुड अंडरस्टैंड, ठीक है, नई चीज़ नहीं है तुम्हारे पास कुछ करने को, तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी में, पता नहीं. बट थिंग्स दैट आर प्लान इन योर लाइफ, जो तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू सम प्लेस, यू स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, एंड दैट न्यू थिंग होल्ड समथिंग फॉर यू दैट यू डोंट रियली नो अबाउट. Isn't it exciting? क्या तुम सैड हो कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है? चेंज इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ. आई वुड बी सैड अगर मेरी लाइफ सेम रहती, कंसिस्टेंट, सेम होती पूरे टाइम पे. अगर मैं एक स्टूडेंट ही रह जाता 1 साल और 2 साल और स्टूडेंट ही रह जाता, आई वुड बी सैड, लाइक कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं भाई, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहे मेरी जिंदगी में, एंड मैं वही एक चीज करके बैठा हुआ हूँ कि एक बंदा चला गया साइड से, मेरा फोकस टूट गया थोड़ा सा. एनीवे, तो मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ रोज, वही सेम चीज़ खा रहा हूँ, वही चीज़ कर रहा हूँ, वही चीज़ कंटेंट बना रहा हूँ उसी चीज़ पे, तो वुड हैव बीन बोरिंग. वो सैचुरेशन, वो बर्न आउट हो जाता है उस चीज़ से. तो कॉल इट माई वीक अटेंशन स्पैन, बट आई रियली वांट न्यू थिंग्स टू हैपन इन माई लाइफ. द ओनली थिंग आई वांट टू स्टे कंसिस्टेंट इज माई रिलेशनशिप, क्योंकि वी कीप डूइंग न्यू थिंग्स, वी गो आउट, हम ट्रिप पे चले जाते हैं, हम न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरे के साथ, and that stays exciting still. तो न्यू चीज़ें उधर भी हो रही हैं, न्यू चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए. when it comes to career, when it comes to education, when it comes to anything that you do in your life, keep trying new things. वरना तुम सेम consistently old boring things पे रह जाओगे तो तुम ग्रो कैसे करोगे? things grow when they change. तुम्हारा जो फोन है वो अपडेट होता है, वो ग्रो करता है, तो वो चेंज हो रहा है ना, and it is changing for the better. तो अगर तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, एंड
it is kind of a growth. You are moving into the next stage of life. It is gonna be better. तुम अगर सैड होते रहोगे कि भाई पहले लाइफ ज्यादा अच्छी थी, पहले ये थी, तो भाई तुम रहने दो फिर भाई. फिर तो तुम्हारा इंटेंशन ही वही हो गया कि भाई मेरी लाइफ पहले अच्छी थी, अब अच्छी नहीं है. अगर तुम उस इंटेंशन से अपनी लाइफ के न्यू उसमें जा रहे हो, क्या कहते हैं, फेज में जा रहे हो, दैट फेज इज नॉट गोना लास्ट गुड फॉर यू बडी. क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यू हैव पीक्ड बिफोर एंड अब सिर्फ सफरिंग है. बहुत सारे लोग इस चीज पे डवेल करते रहते हैं कि भाई वी हैव पीक्ड, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ दैट यू गोना हैव, और अब सब खराब डाउनहिल जाने वाला है. नो, वंस यू एंड योर स्टूडेंट लाइफ और तुम्हारी अब न्यू जॉब शुरू होने वाली है, थिंग्स आर गोना गो अप. तुम अब पैसे कमाने वाले हो, तुम अब अपनी लाइफ स्टाइल खुद से जीने वाले हो, तुम इंडिपेंडेंट होने वाले हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा अबाउट थिंग्स. अब तुम फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे. तुम्हें सिर्फ पैसे मांगने के लिए फोन नहीं करना पड़ेगा. तुम हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो सब करने के लिए फोन कर सकते हो. एंड थिंग्स आर गोना बी बेटर. यू गोना बाय योर ओन न्यू थिंग्स. जब मैं निकल रहा था अपने कॉलेज से एंड वी वर डूइंग ऑल दैट फेवरेट स्टफ, पीपल वर सैड अबाउट दिस कि भाई अब क्या, भाई अब तो खत्म हो गया MBA, अब क्या करेंगे हम लोग. बहुत सारी चीजें लाइफ में करने को, अब तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम पैसे कमाने वाले हो. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है कमिंग इनटू दिस इज माय फर्स्ट जॉब बाय द वे. आई एम अ फ्रेशर और मेरी फर्स्ट जॉब है इन माय लाइफ. मैंने इंटर्नशिप्स करी है 2, but otherwise job wise I am a fresher, do not have work experience. So this could change, potentially this could change if you guys are right. अगर अगर मैं भी वैसे बन गया, यार मैं पीक कर गया था भाई, ये तो बहुत घटिया चीज़ है भाई, कॉर्पोरेट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा यार, क्या है ये बकवास चीज़. बट अगर वैसा हुआ, आई विल मेक अ वीडियो दैट आई टोल्ड यू सो कोटेशन में, बिकॉज तुम लोग वही बोलोगे कि आई टोल्ड यू सो, कि भाई लाइफ पीक हो चुकी है और सब खराब होने वाला है. बट एनीवे, कंप्लीटेड माय MBA, learned a lot of new things about myself, learned bad habits, good habits, and abhi currently I am back home for a couple of months, and I've changed my hairstyle as you can see. और क्या हो रहा है, अब मैं यूट्यूब कंटेंट फिर से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी बनाने के लिए, मेरे पास और चीज़ें हैं करने को. बट एट सेम टाइम आई रियली डू वांटेड टू अपडेट माय चैनल बिकॉज उधर मेरी पूरी ग्रोथ दिखी हुई है, तो व्हाई नॉट दिस फेज ऑफ माय लाइफ एज वेल. And I really wanted to learn again to talk to a fucking camera and talk fluently, talk with confidence, and talk like I'm talking to my own people. I am 23 years old now, and my life is changing rapidly in a couple of months. अभी मैं student था, अभी मैं एक transition period में हूँ from student to corporate life, but at the same time I am me. मेरी पर्सनैलिटी वही रहने वाली है. एट द सेम टाइम आई रियली डू वांट टू बी मोर एक्सट्रोवर्टिव, आई वुड से. लाइक मैं ऑलरेडी था एक्सट्रोवर्टिव व्हेन आई वाज लिविंग. मेरे मुंबई जाने से पहले जो मैं था, आई रियली यूज्ड टू मैं पहले इंट्रोवर्ट था, फिर मैंने अपने आप को सिखाया कि भाई कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, तुम कैसे अप्रोच कर सकते हो, रैंडम लोगों से अप्रोच करके बात कर सकते हो. एंड इट रियली मेड द प्लेस जहाँ पे तुम, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं बाहर जा रहे हो, राइट, मान लो तुम ट्रिप पे जा रहे हो, एंड यू मीट and you see people in your bus going to the same place जिससे भी तुम ट्रैवल करो. फॉर एग्जाम्पल you're going, imagine this scenario कि तुम कोई एक न्यू ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे तुम बस से जा रहे हो, एक तुम अपने दोस्त, तुम शायद अकेले जा रहे हो, ठीक है. Wouldn't it be better कि अगर तुम कुछ लोगों से बात करके रखो उधर ताकि लोग तुम्हें जाने. The whole environment would be much more comfortable with you when you know that you are around people that you have spoken to and you have joked around with. तो ऐसे बात करना रैंडमली किसी से भी जाके, वो सब मैंने सीखा है, खुद से सीखा है. नो वन केम एंड टॉट मी एनीथिंग. एंड मेरे मोस्ट सारी जो पर्सनैलिटी लाइफ है वो मैंने खुद से सीखी है, एंड कुछ जिंदगी ने मेरे को सिखा दिया कि भाई ऐसे नहीं करने का है, ऐसे करने का है. तो वो सब मैंने सीखा था कि भाई अपने एनवायरनमेंट को अपने लिए कंफर्टेबल कैसे बनाए, बाय स्पीकिंग टू पीपल, बाय हैविंग ए प्रेजेंस अराउंड देम एंड दे नो दैट दिस पर्सन इज दैट पर्सन. बाकी मेंटालिटी वाइज तो आई वुड से मैंने सही चीज़ें कही थी अभी तक, तो कि भाई सब कंपटीशन है, सब रैट रेस है, तुम्हें सबसे आगे निकलना है, और सब तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, और बट तुम्हें सबको छोड़ के सबसे आगे निकलना है. और तुम्हें अगर बेटर चीज़ें मिल जाएंगी बाकी से, तो बाकी तुम्हें एनवी करेंगे, तुमसे जेलस होंगे, बी इट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एनीवन. सो नॉट फैमिली, आई वुड से फ्रेंड्स एंड अदर पीपल दैट हु तुम्हारे पीयर्स होते हैं, वो तुमसे चलेंगे अबाउट दैट द फैक्ट दैट यू गॉट समथिंग बेटर देन देम.
yeah, that is the life update I have right now. मैं अभी consistently जिम जा रहा हूँ फिर से, तो I am getting, मैं मोटा हो गया था अभी भी रिसेंटली, अभी 2 सालों में मैंने लाइक इनकंसिस्टेंटली, अगर तुम जिम करोगे तुम बाहर का बहुत ज़्यादा खाओगे, सिंस यू आर लिविंग अलोन समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार ऐसे होता है कि तुम खुद से खाना नहीं बना रहे हो, तुम्हारी कुक दीदी नहीं आ रही है, तो तुम खुद से तुम खाना ऑर्डर ही करोगे रात को. स्पेशली ईटिंग लेट एट नाइट रियली बूस्टेड दिस transition from me being a fit ass person to being a fat ass person. So let's see, hopefully मैं आगे जाके फिर से फिट हो जाऊँ भी फिर से, अब एटलीस्ट जॉब एक महीना जो मेरे पास है अभी जॉब पे जाने से पहले उसमें मैं फिट हो जाऊँ फिर से. एंड या दैट इज माई लाइफ राइट नाउ. आगे मैं वीडियो शायद इस पे ना बनाऊँ क्योंकि ये अपडेट था जो मुझे अपडेट देना था. एंड अभी मैं देखता हूँ क्या बनाने में कोई वीडियो पे, क्या पता कुछ सिखाऊं तुम लोगों को फिर से. But who knows? Who knows? Thank you guys for watching. I'll see you guys later. See you boys, keep working hard.